start the Semper-Venture experiment. Until 1950, it was believed that the genes are arranged on the chromosomes like the beads on the necklace, invisible into the smaller unit of mutation and the recombination. This was called as the bead theory. Semper-Venture tried to resolve the three major theories, and he performed his experiment on the R-second locus of the bacteriophage T4. His first theory is that the gene is the fundamental unit of function, which was he resolved by the complementation test. Second theory is the gene is the fundamental unit of structure, invisible by the crossing over. It was believed that the recombination occurs between the gene. Now there will be a question whether intragenic recombination is possible. This theory was resolved by recombination test. Third theory is the gene is the fundamental unit of change. That means gene is the only place where actual mutation is possible, and this theory was rejected or will be proven by the deletion mapping. Now in early 1950s, Semper-Venture undertook a detailed examination of a single locus R2 in the phage T4. By bacteriophage T4 was chosen. T2 and its closely related T4 viruses that infect the bacterium E. coli, the infection ends with a destruction, that is the lysis of the bacterial cell. So these viruses are the example of the bacteriophage. मतलब इन्होंने T4 इसलिए चूज़ किया क्योंकि लैक्टिक साइकिल्स को परफॉर्म करता था. T4 फेज जो है वो लैक्टिक साइकिल परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वो बैक्टीरिया का लाइसिस कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ इट जब भी इन्फेक्ट करेगा तो उसके जो प्रोडक्ट में हमें बहुत सारे बैक्टीरियोफाज मिल जाएंगे. दूसरी बात ये थी कि जो वायरस है वो दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट जीनोटाइप्स है उसको हम एक सिंगल बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कर सकते हैं. मतलब कि एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसमें हम साइमल्टेनियसली एक या एक से ज़्यादा फाजेस को हम इन्फेक्ट उससे करवा सकते हैं. सेकेंड इसका मेन पॉइंट ये था कि जो इसका जो डीएनए मॉलिक्यूल था, जो इन्फेक्टिंग वायरस का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रिकम्बाइंड कर जाता है. ठीक है, वो रिकम्बाइंड कर जाता है और वो एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना देता है. कहने का मतलब जब भी एक बैक्टीरिया में दो वायरसेस एक साथ हम इन्फेक्ट करते तो उन दोनों वायरसेस का जो डीएनए है वो एक दूसरे से रिकम्बाइंड कर जाएगा और वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना देगा. थर्ड मेन पॉइंट इसका ये था कि ये जब भी बैक्टीरियोफाज ये बैक्टीरियल होस्ट में इन्फेक्ट करता है तो जब वो रिलीज़ होता है तो एक लार्ज नंबर, एक हग नंबर ऑफ हमें ये वायरसेस देखने को मिलते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेयर रिकॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इजीली तो होती नहीं, बहुत रेयर प्रोसेस है. अगर 1000 में से किसी एक में भी रिकॉम्बिनेशन हुआ तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर ऑफ अपनी कॉपीज़ बनाता है. बहुत सारे नंबर ऑफ वायरस है जो अपनी कॉपीज़ बनाता है. इसके वजह से हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. ये इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज T4 को यूज़ में लिया गया था. Each gene occupy a specific position on the chromosome that is known as the locus. Genes occurs in the fundamental stage called the alleles. Venture studied the mutation of a gene has designated as R for the rapid lysis. Actually, there are three different genes loci R1, R2, R3. Mutation in any one of which produce a rapid lysis phenotypic. This means that the plaque produced by such phases will be a large in size and clear margin. Such phases are called rapid lysis mutant and are denoted by the R. Venture studied the mutant in R2 locus, that is the conditional lethal, and are recognized due to their inability to grow in E. coli strain K12. कंडीशनल लीथल्स क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं, फिर जो इसमें जो समझाया गया है वो मैं बताती हूँ. कंडीशनल लीथल्स एनी म्यूटेशंस दैट प्रोड्यूस अ म्यूटेंट whose viability depends on the condition of growth. मतलब कंडीशन लीथल्स वो लीथल्स है, मतलब वैसे ऐसे म्यूटेशन अगर किसी मीडिया में कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसकी वायबिलिटी के हिसाब से उस जीन के या उस जीनोम के अंदर म्यूटेशन हो जाना. मतलब कि उसका जो म्यूटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी ग्रोथ होने की जो कंडीशन है वो कैसी है. इन नॉर्मल ग्रो इन दी प्रिसेसिव कंडीशन. प्रिसेसिव कंडीशन मीन्स जब उसको सारी जो कंडीशंस है, सारी जो ग्रोथ के लिए जो नॉर्मल कंडीशन है वो अगर दी जा रही है तो वो इजीली ग्रो करेगा. और बट इन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन मतलब कि उसमें से जो अगर किसी भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन मतलब वो कंडीशन होती है अगर किसी भी
अगर किसी भी ग्रोथ की जो कंडीशन है, अगर उसमें से हम किसी एक ग्रोथ फैक्टर को या किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हटा दे तो वो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, वो उसके बिना ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस कहते हैं। और जब रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन पे जो म्यूटेशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो इसमें इन्होंने मतलब सैम्पर वेंचर ने क्या किया था, इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया लिए थे। एक तो इकोलाई बी सेल लिया था और एक इकोलाई K12 लिया था, राइट। जो इकोलाई बी सेल था उसको प्रिसेसिव होस्ट कहा जाता है और इसके अंदर सारे के सारे मतलब कि जो वाइल्ड टाइप है और जो म्यूटेंट टाइप है वो दोनों के दोनों ग्रो करते हैं। बट जो रिस्ट्रिक्टिव होस्ट है, मतलब कोई एक ऐसा हो जिसकी ग्रोथ की कंडीशन में कुछ कमी रह गई हो या कुछ कंपोनेंट नहीं हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड टाइप ही ग्रो कर सकता है, म्यूटेंट ग्रो नहीं कर सकता। ये उसकी खास बात होती। तो जब भी हमें सैम्पर वेंचर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट का एनालिसिस करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से जो बैक्टीरिया का जो रीज़न है या ऐसे कौन से प्लाग्स है जो सिर्फ और सिर्फ इकोलाई K12 के अंदर नहीं है, वही हमारे क्या होंगे, म्यूटेंट होंगे। क्योंकि इकोलाई K12 में सिर्फ और सिर्फ हमारा वाइल्ड टाइप मिलेगा और बी में वाइल्ड और म्यूटेंट दोनों मिलेगा। तो जो वाइल्ड टाइप जो मिल रहा है तो उसको अपन बी से और K12 से मैच कर सकते हैं, पर जो म्यूटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ हमें बी में ही शो होगा। सैम्पर वेंचर ने ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। जीन इज़ द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ फंक्शन, इसको अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसको इन्होंने अप्रूव किया था कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के दौरान। अब होता क्या है, जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है R सेकेंड प्लस का मतलब यहाँ पे वाइल्ड टाइप, जब भी वाइल्ड टाइप बी इकोलाई के बी स्ट्रैंड पे ग्रो होगी तो उसमें क्या होगा, स्मॉल और फजी हमारे जो फाज है वो मतलब कि जो प्लाग्स है वो हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, स्मॉल और फजी। पर जब भी म्यूटेंट वाली जो फाज है वो ग्रो करती है तो वहाँ पे लार्ज और क्लियर प्लग्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। Thus on E. coli K lambda, that is the K12, only wild type will grow. Thus when the progeny of the genetic cross between the two different R2 mutants are added to the E. coli K lambda, only the wild type recombinant will form and will be detected even when their frequency is low as 1 per 10⁻16 progeny। मतलब सिर्फ और सिर्फ K12 में या K lambda में सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड टाइप ही ग्रो कर सकती है। अब स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द सिस ट्रांस टेस्ट is a test used to determine whether the two independent mutation affecting the same phenotypic function occurs within the same cistron, that is the gene, or the different cistron। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सा भी जीन है उसमें अगर टू इंडिपेंडेंट म्यूटेशन होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो अपना एक वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे उसको अपन आगे समझेंगे। अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम सेल, नॉर्मली अ बैक्टीरियल सेल। म्यूटेशन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन सिस पोजीशन। इफ दे अकर्स वन on each homologi, they are in terms of transposition. If the bacterial cells after the co-infection with two different mutant phases is phenotypically normal, that is wild for both cis and transposition of the mutation, this mutation are considered to be present in the different cistron। कहने का मतलब ये है कि अगर दो म्यूटेंट को हम एक साथ इन्फेक्ट कराते हैं होस्ट के अंदर और हम ये देखते हैं कि जो उसकी जो फर्स्ट प्रोजेनी आई है उसमें वाइल्ड टाइप शो हो रहा है, मतलब कि उन दोनों में जो म्यूटेशन था वो किस पोजीशन पे था, सिस और ट्रांस पोजीशन पे था। मतलब एक तरफ जैसे कि इसका एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ए है उसमें जीन 1 पे म्यूटेशन है और जो उसका जो नीचे वाला क्रोमोसोम है उस पर जीन 2 पे म्यूटेशन है। जब भी अपन इसका कॉम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे तो जो जीन 1 है वो नीचे वाले से सही आ जाएगा और जो जीन 2 है वो ऊपर वाले से सही आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और इनका जो हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो हमें वाइल्ड फिनोटाइप देखने को मिलेगा। अगर अपन सेकंड केस देखते हैं बी वाला, अगर उसमें वो म्यूटेशन दोनों एक ही जीन में प्रेजेंट है, मतलब दोनों सिस पोजीशन में म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो जो हमारी F1 प्रोजेनी आएगी वो हमें कैसी देखने को मिलेगी, म्यूटेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि दोनों क्रोमोसोम में जीन 1 जो है वो जीन
ख़राब हो चुका है उसको कोई भी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सिस ट्रांस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। देयर आर द 4 केसेस इन विच द रिजल्ट ऑफ सिस ट्रांस टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। कौन कौन से केसेस है? अगर वो केस डोमिनेंट या कोडोमिनेंट म्यूटेशन का हुआ तो हम नहीं देख सकते। अगर उनमें इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब आपस में ही एक ही जीन के अंदर वो कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो हम ये सिस ट्रांस टेस्ट से पता नहीं कर सकते। तीसरा केस, अगर उसमें पोलर म्यूटेशन हुआ। पोलर म्यूटेशन का क्या मतलब है? पोलर म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन दैट नॉट ओनली रिजल्ट इन अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द जीन in which it is located but also interference with the expression of one or more adjacent gene। मतलब कि कोई एक ऐसा म्यूटेशन सिर्फ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही नहीं देख रहा, बल्कि वो जो उसके आसपास के जो जीन है उनके एक्सप्रेशन पे भी वो इफेक्ट करता है, उसको पोलर म्यूटेशन कहते हैं, राइट। फिर इसका जो 4th लिमिटेशन है वो है सिस एक्टिंग जीन, most commonly gene that do not code for the fusible product। In addition, 6 acting genes, example the operator region, promoter region, cannot be analyzed by the cis trans test because cis trans test depends on the gene product, right, being diffusible, but regulatory binding site on the chromosomes like the operators on the promoters do not code for the fusible product and they only affect the expression of the genes located in the same chromosome to them, right। जैसे कि इसमें अपन देखेंगे तो एक हमारे पास दो क्रोमोसोम है, जिसमें फर्स्ट वाले क्रोमोसोम पे जीन बी पे म्यूटेशन है और सेकेंड वाले क्रोमोसोम में जीन ए पे म्यूटेशन है। उन दोनों को जब अपन को इन्फेक्ट कराते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द कॉलोनी होगी वो कैसी होगी? स्मॉल होगी, फेजी, स्मॉल और फेजी दिखेगी, मतलब वाइल्ड टाइप की दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम उसमें जीन ए सही है और सेकेंड वाले क्रोमोसोम में जीन बी सही है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट between the R-second mutant were done by the simultaneously infecting 2 different mutant phase on the E. coli K12 lambda cell। 90 से 120 मिनट के बाद में अगर उसमें लाइसिस हो रहा है E. coli K12 के सेल के अंदर, जब तो हम ये पता कर सकते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड टाइप ही ग्रो हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम एक बैक्टीरियम सेल को 2 म्यूटेशन के साथ, मतलब 2 अलग अलग फाज में जो 2 अलग अलग जगह या 2 मतलब कैसी भी जगह म्यूटेशन हो रहा है उसको हम को इन्फेक्ट करवाते हैं और फिर उसको हम ई कोलाई K12 में ग्रो करवाते हैं उस फाज को। तो जब हम देखते हैं कि अगर ई कोलाई K12 में प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे लाइसिस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 2 म्यूटेशन थी वो कहाँ थी? 6 ट्रांस पोजीशन पे थी, मतलब अलग अलग जीन पे वो प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, राइट। यही इसका सिस ट्रांस टेस्ट का बेसिक फंडा है। Bencher isolated over 3000 independent R-second mutant। The first question that he asked, how many genes do these mutations identify? 1, 2 or 3000? When analysis by the cis trans complementation test, all the R-second mutants were found to be located in one of the 2 genes or the cistones। Bencher designated these genes as R-second A and R-second B। He crossed the pair of R-second mutant and found that they belong to the 2 functional group due to the presence of the 2 separate segment R-second A and R-second B। In the R-second region of the Fas chromosomes, the 2 groups of the R-second mutant, namely R-second A and R-second B, can be designated from their behavior and after mixed infection of the strain K lambda। When mixed infection is done using the 2 different mutant, one belonging to the R-second A and another belonging to the R-second B group, the 2 phases multiply and cause lysis of the host cell and plaques are formed। This means that the normal polypeptide of the both mutant are required to produce the plaque, that is to say that the 2 complement to each other। But if the 2 mutant used for the mixed infection of K lambda both came from the same group, either R-second A or R-second B, they will not able to perform the plaque, that is non-complementary। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रखा है। नेक्स्ट है, जैसे ये वही डायग्राम है जिसको थोड़ा और सिंपली वे में बता रखा है। अगर म्यूटेंट दोनों ही R-second A जीन के अंदर हो रही है तो जो ई कोलाई का K12 का उस पर हमें प्लाक का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा और उसमें कोई कॉम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाएगा। पर अगर म्यूटेंट R-second A और R-second B 2 अलग अलग पे है तो उस पर हमें कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट देखने को मिलेगा और जो प्लाक का जो फॉर्मेशन है वो भी हम इसमें देख सकते हैं।
और यहाँ पे एक टर्म थी सिस्टोन जो कि बेंजर ने ही कॉइन की थी, राइट। The complementation or the transfer test can be used to determine whether the two mutation are located in the same gene or in the different gene। मतलब यहाँ पे हमने दो म्यूटेंट लिए, उन दोनों को आपस में को इन्फेक्ट कराया E. coli K12 के अंदर, और हमने उनकी जो F1 प्रोजेनिस को केयरफुली ऑब्जर्व किया। अगर उसका F1 में भी म्यूटेंट फिनोटाइप रहा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो म्यूटेशन है वो कहाँ हुआ था, सेम जीन पे हुआ था। अगर F1 वाइल्ड टाइप का बनता है तो इसका मतलब ये है कि जो म्यूटेंट है वो कहाँ हुआ था, डिफरेंट जीन पे हुआ था। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। एनी टू डिफेक्टिव स्ट्रेन डेट फेल टू कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई दो डिफेक्टिव स्ट्रेन जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पूरा था कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेशन टेस्ट, जो कि इसकी सेकंड थ्योरी थी जो कि रिजेक्ट की गई थी। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन है वो भी पॉसिबल हो सकता है, जिसके कारण एक तो डबल म्यूटेंट बनता है और एक वाइल्ड टाइप हमें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट और फिर इसका जो पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें अपन देखेंगे इसकी जो थर्ड थ्योरी थी जिसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया था बाय द डिलीशन मैपिंग, इन्होंने जो बताई थी वो अपन इसका जो लास्ट पार्ट आएगा थर्ड वीडियो में वो देखेंगे। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।